Hi everyone. So this is the last session got ended due to some issue. Now this is the continuation of that session only, part two. So in this we were discussing about this one, max length property. So in the JavaScript you can use max length like this and min length like this. No capital L. Okay, we were using this capital L and that's why it was not working. Now Okay, that's just get follow. if we see this now, uh, give me a minute. Yeah, if we see this now, if I try to enter only two characters, it will show you please enter at least 10 characters. If I put 10 characters, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, it you are good. But if you try to add more than 10 characters, it will show enter minimum 10 characters. Got it? So whatever error messages you want to configure as per the your validation, you can also do that using this syntax. Syntax is like this. Okay, registration form means your HTML form name, then validate function name, then rules. Rules means here you can configure your actual validations rule. And you can also add the multiple rules like this by using the comma. Okay. Uh, you you can see this phone number is not required field. Okay, it should be because of this HTML you have added required. So what I will do, I will remove the validation part from the HTML and we will add all the validations using jQuery only. Okay, like this. So you can see there is no validation here. Okay, now if you want to apply the validation, if I click submit, it is required. Why? Only one field is required. Why? Because only one field we have added the required true. So whatever field you want to add as a required true, you can just add this. Now, if I refresh and click here, it will show it for two fields. One is for first name and phone number because only these two fields are having the required true rule. So if you want to add this rule for all the fields, what you can do, first of all, copy this line, paste it here and add the selector. So selector is first name, then last name, okay, then email, phone number, first name, last name, email, then phone number, phone number, then password, phone number, then password, and one more is that confirm password, right? So these many fields we are having, and all the fields are now having required true message. Sorry, required true validation. See, it will show like this. But if you want to configure custom message for each field, what you will need to do then? You just need to copy these lines, paste here, and wherever you are seeing required true, just enter your custom message there. Like, please enter last name. Okay. Please enter email address. Okay, phone number again. Please enter. Okay, please enter phone number. Phone number already there, right? After email, there is a phone number which is already there. So remove that. Okay. After phone number, password and confirm password. So we can just mention like, please enter password and please re-enter password or retype password. Okay, like this. So if you see, all your required field validations will have the custom messages. Please enter first name, last name, email. Okay, for this we do not have password and retype password. Now for this, if I want to add it, how I can do that? First of all, just add it to the specific position, its own position to avoid confusion. Okay, here also. So this is the coding standard. We should have a proper sequence. And then why it is not showing? Because for phone number we haven't added any message for required validation. Okay, please enter phone number like this. Now if you refresh, click on the register button, you can see
Please enter phone number, please enter email, last name, first name, password, retype password. If you see, if I click on that error message, it is pointing to the respective text box automatically because of the for attribute. You can see this label should have the for attribute. See, for attribute will help you to jump on the relative text box on clicking of the current label. So label can have the for attribute. Okay. Now, now let's check uh, first name, right? The first name, if you add Sandeep, it is allowing Patil, it is working. Okay. Now, let's say you want to check whether this password text box and this password text box have the same पासवर्ड, क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर मैं मान लो यहाँ पे मैंने 1 2 3 डाला, यहाँ पे मैंने 4 5 6 डाला, देन वी शुड नॉट डालो, राइट? वी शुड शो वन मैसेज दैट please enter same password again. So that is the meaning of confirm password. You have to write the same password into the both tick boxes. यहाँ पे मैंने 1 2 3 डाला, यहाँ पे मैं 4 5 4 5 6 डाल रहा हूँ, तो इट शुड नॉट अलो देम टू प्रोसीड बिकॉज दोनों इसमें गलत पासवर्ड है, दोनों मैच होने चाहिए। तो वो कैसे करोगे? तो क्या करना है अपने को, कंफर्म पासवर्ड में यहाँ पे एक इक्वल्स करके फील्ड रहता है, इक्वल्स, इक्वल्स। ओके, ये तो मैसेज हो गया, यहाँ पे कुछ भी मैसेज बाद में डाल देंगे, लेकिन रूल पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई इक्वल्स, और यहाँ पे फिर आप क्या लिखोगे, पासवर्ड, मतलब ये सिलेक्टर लिखोगे, मतलब इस कंफर्म पासवर्ड का वैल्यू शुड बी इक्वल टू पासवर्ड फील्ड का वैल्यू, और अगर नहीं है तो यहाँ पे लिखो मैसेज, प्लीज इंटर सेम पासवर्ड अगेन। ओके, अभी रिफ्रेश करके देखो, यहाँ पे मान लो मैंने डाल दिया, पासवर्ड डाला मैंने 1 2 3, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 4 5 6, और मैं कर रहा हूँ सबमिट। अच्छा, इक्वल्स टू है शायद, वो इक्वल्स नहीं है, इक्वल्स टू और इक्वल टू ऐसा कुछ है। ओके, आई नीड टू चेक, बट लेट्स ट्राई दिस फर्स्ट। अभी मैंने यहाँ पे 1 2 3 डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया मैंने 4 5 6, सी इट इज वर्किंग, राइट? प्लीज रिटाइप पासवर्ड। उप्स, नहीं, ये नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा है? यहाँ पे लिखो फिर, इक्वल, इक्वल्स टू, ये बताइएगा कितनी कैपिटल करना है, ये थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएंगे। ओके, जस्ट गो टू द डॉक्यूमेंटेशन, यू विल सी ऑल द फील्ड्स अवेलेबल। ओके, बट मैं जस्ट गेस कर रहा हूँ कि क्या हो सकता है, तो इट इज बेसिकली कैपिटल टी, दैट्स इट, नथिंग एल्स। यहाँ पे कैपिटल एल था, फिर उन्होंने स्मॉल एल करने को बोला, इसलिए मैंने बाय डिफॉल्ट स्मॉल डाला था, लेकिन इट इज कैपिटल दिस टाइम। लेट्स ट्राई अगेन। यहाँ पे मैंने 1 2 3 डाल दिया, यहाँ पे मैंने 4 5 6 डाला, सी अगर दोनों पासवर्ड मैच नहीं हुए तो क्या बोल रहे हैं, प्लीज इंटर सेम पासवर्ड अगेन। मान लो मैंने यहाँ पे 1 2 3 ही डाल दिया, तो यहाँ पे गलत होगा, 1 2 3 यहाँ पे डाल दिया, फिर 1 2 3 डाल दिया, तो नहीं हो रहा है, मतलब क्या, अपना सिलेक्टर गलत है। ओके, सिलेक्टर गलत, सिलेक्टर क्या होना चाहिए, इनपुट नेम इक्वल टू पासवर्ड, ऐसा सिलेक्टर होना चाहिए। ये कौन सा सिलेक्टर है, एलिमेंट सिलेक्टर, एंड ये कौन सा है, एट्रीब्यूट सिलेक्टर। कि ऐसा टेक बॉक्स कि जिसका नेम नाम के एट्रीब्यूट में पासवर्ड नाम की वैल्यू है, उसका जो वैल्यू है वैसे ही मेरा वैल्यू होना चाहिए। अभी रिफ्रेश करके देखो, यहाँ पे मैंने डाला 1 2 3, यहाँ पे डाला 4 5 6, फिर भी नहीं चल रहा है। लेट मी चेक देन व्हाट इज रॉन्ग हियर। तो उन्होंने कैसे डाला है, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड इक्वल टू आईडी दिया हुआ है। ओके, बट आई डोंट थिंक कि आईडी, कौन सा भी वैलिडेशन चलना तो चाहिए। लेट्स चेक इफ देयर इज एनी अदर एग्जांपल। हाँ, आईडी ही चाहिए उसको एक्चुअली। ओके, अगर आईडी ही चाहिए तो फाइन, लेट्स चेक कि यहाँ पे आईडी है क्या, आईडी है।
पासवर्ड। फाइन देन, अगर आईडी है तो उसको हैश करना पड़ेगा अपने को यहाँ पे, और मेक श्योर कि ये आईडी उसको मैच कर रहा है। ओके, कंफर्म पासवर्ड का वैल्यू पासवर्ड के टेक बॉक्स के साथ मैच करेगा। अभी देखो एक बार रिफ्रेश करके, 1 2 3 4 5 6, फिर भी नहीं हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। और कंफर्म पासवर्ड रिक्वायर्ड ट्रू इक्वल्स पासवर्ड, पासवर्ड इज द आईडी ऑफ दिस टेक बॉक्स। ओके, और यहाँ पे उसका आईडी क्या है, पासवर्ड ही है। दैट्स ट्रू, कंफर्म पासवर्ड। ओके, लेट मी चेक। यहाँ पे मैंने क्या डाला है, इनपुट टाइप, इसको इनपुट टाइप टेक्स्ट करो। ओके, 1 2 3 डाला। और इसमें क्या डाला है मैंने, इसमें डाला है मैंने इनपुट टाइप, फिर से टेक्स्ट करके देख लो, 4 5 6 डाला ना, तो ये एरर देगा। फिर मैं 1 2 3 डब, हाँ अभी चल रहा है। आई वॉज इंटरिंग रॉन्ग वैल्यूज ना, दैट्स वाई। मतलब क्या, मैं आपको थोड़ा विजिबल करके देता हूँ ना टेक्स्ट, उससे क्या होगा, आपको दिखेगा कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ। ओके, मतलब ऐसा है, अगर किसी ने यहाँ पे 1 2 3 डाला और यहाँ पे 4 5 6 डाला, तो ये बोलेगा प्लीज इंटर सेम पासवर्ड अगर। फिर मैं क्या करूंगा, इसको निकाल के यहाँ पे 1 2 3 डालूंगा, तभी वो एक्सेप्ट करेगा, राइट। So this is how we can implement the equal to validations if you want to compare the values of two different tick boxes. Okay, so that also you can do. नेक्स्ट है नंबर। तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर मान लो इसका इसका टाइप, सबका टाइप में टेक्स्ट कर देता हूँ ना, तो इंटरनली वो कोई भी वैलिडेशन खुद से लगाएगा नहीं। जो भी लगेंगे वैलिडेशन वो अपने परमिशन से लगेंगे, अपने रूल्स के हिसाब से। अभी फोन नंबर का वैलिडेशन मैंने क्या लगाया पहला, एक तो एटलीस्ट 10 कैरेक्टर होने चाहिए। वो क्यों नहीं चल रहा है अभी, देखते हैं अपन। फोन नंबर, अच्छा 2 बार हो गया ना, इसको निकाल दो। अभी रिफ्रेश करो, अभी डालो 1 कैरेक्टर, बोल रहा है 10 कैरेक्टर डालो, फिर मैंने 10 डाल दिए तो चल रहा है। 10 से ज्यादा डाले तो बोल रहा है मिनिमम, इंटर मिनिमम 10 कैरेक्टर्स। ओके, एटलीस्ट 10, यहाँ पे मिनिमम नहीं आएगा ना, कुछ तो गड़बड़ है, रुको। मैक्स लेंथ पे क्या बोलेंगे अपन, मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स, राइट। मैक्स लेंथ पे मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स, और मिन लेंथ पे, अच्छा इसका नाम मीन होना चाहिए, मीन। ये सब ध्यान में रखना पड़ता है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इंटर। अगर मिनिमम आपको 10 कैरेक्टर चाहिए और मैक्सिमम आपको 10, अभी देखो इसके मैसेजेस, यहाँ पे मैंने एक ही डाल दिया, तो क्या बोल रहा है मिनिमम 10 कैरेक्टर्स, फिर मैंने 10 कैरेक्टर डाल दिए। ओके, फिर 10 से ऊपर जाऊंगा तो क्या बोलेगा, मैक्स 10 कैरेक्टर्स। ओके, दिस इज वर्किंग। अभी आपको क्या करना है कि फर्स्ट नेम में मुझे नंबर अलाउ नहीं करना। ओके, अगर नंबर अलाउ नहीं करने हैं तो एक फंक्शन रहेगा कुछ उसका, अल्फाबेट्स ओनली। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा लेटर्स ओनली करके है, वो यूज करना पड़ेगा। मतलब अभी देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, फर्स्ट नेम में मैंने 1 2 3 डाल दिया, ये अलाउ नहीं करना है अपने को, यहाँ पे लेटर्स ही चाहिए ओनली। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे, फर्स्ट नेम में कॉमा करके लेटर्स ओनली कोलन ट्रू, तो ये अल्फाबेट ही अलाउ करेगा, उसमें आपको नंबर अलाउ नहीं करेगा। ओके, लेटर्स ओनली ट्रू, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ओके फाइन, अभी रिफ्रेश करो। अभी यहाँ पे आप टाइप करके देखो 1 2 3 एंड गो नेक्स्ट। अच्छा, एरर दे रहा है, क्या एरर है, फर्स्ट नेम चेक द लेटेस्ट ओनली मेथड, लेटेस्ट ओनली मेथड नहीं है ऐसा उनका कहना है। ओके, इफ दैट इज द केस देन व्हाई ही सजेस्टिंग दैट। अच्छा, अगर आपको ये लेटेस्ट ओनली नाम का मेथड यूज करना है, तो आपको इसका ये रेफरेंस भी डालना पड़ेगा, एडिशनल मेथड्स करके देखो, एडिशनल मेथड्स, ये jQuery वैलिडेशन का ही लाइब्रेरी है, बट दैट विल गिव यू सम एडिशनल मेथड्स अपार्ट फ्रॉम द करंट वैलिडेशन लाइब्रेरी। अगर आपको वो एडिशनल मेथड यूज करने हैं यहाँ पे,
उसने सजेस्ट किया है। देखो एडिशनल मेथड दिख रहा है, हमने ये डाला हुआ है ऊपर का, अभी अपने को ये भी डालना है, राइट? सो यू कैन ऑल्सो डू दैट, जस्ट कॉपी दिस लाइन, गो हियर, और यहाँ पे आप ऐसे डाल सकते हो, स्क्रिप्ट एसआरसी, वो ले मेथड, दैट्स इट। अभी रिफ्रेश करके देखो, इंटर करो, यहाँ पे डालो 1 2 3, ये क्या बोल रहा है, लेटर्स ओनली प्लीज। अगर ये मैसेज आपको चेंज करना है तो ऑब्वियसली क्या करोगे, लेटेस्ट ओनली को कॉपी करके यहाँ पे डालो और इसको मैसेज डाल दो, प्लीज इंटर ओनली अल्फाबेट्स। ओके, अभी देखो मैं 1 2 3 डाल रहा हूँ, नेक्स्ट जा रहा हूँ, बोल रहा है प्लीज इंटर ओनली अल्फाबेट्स, फिर मैंने डाला ABC, अभी अलो कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन apply any kind of validations with the help of jQuery validate library. It is very powerful and it has a good community support. जैसे कि आपने देखा रहेगा, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम आता है, मैं डॉक्यूमेंटेशन में नहीं जाता हूँ, सीधा गूगल पे मैं क्या करूँ, वो लाइब्रेरी का नाम और आगे मेरा क्वेरी, आपको पहला ही लिंक मिल जाएगा स्टैक ओवरफ्लो, क्योंकि ये बहुत पुराना लाइब्रेरी है। देखो ये कमेंट कहाँ से है, 2010 से है, इसका मतलब बहुत पुराना लाइब्रेरी है एंड वेरी पॉपुलर लाइब्रेरी है। उसका कम्युनिटी सपोर्ट भी बहुत बढ़िया है, तो यू कैन जस्ट गो एंड यूज दैट लाइब्रेरी फॉर applying the validations to your web pages. Okay, I hope I have covered that. कभी कभी आपको खुद से रेगुलर एक्सप्रेशन भी लगाना होता है। रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब जैसे मैंने आपको बोला था कि भाई यहाँ पे स्पेस नहीं चाहिए, ओके, इंटर ओनली अल्फाबेट्स, ठीक है, इसने कवर कर लिया, क्योंकि स्पेस अल्फाबेट नहीं होता है, तो वो अपना काम हो गया। देखो अगर किसी ने सीधा यहाँ पे ऐसे कर दिया अमृत पाटिल, सो इट विल नॉट अलाउ दैट, आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा, ओके, तभी वो अलाउ करेगा। यहाँ पे ऐसा ही लिखना पड़ेगा तभी अलाउ करेगा, so that also get covered, no issues. Okay, I think I'm done with this library. If you want to explore it more, too many things आप कर सकते हो। आप खुद के वैलिडेशंस डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि पासवर्ड जब मैं टाइप करूंगा उसमें मुझे मिनिमम एक नंबर चाहिए, एक कैपिटल लेटर चाहिए, एक स्मॉल लेटर चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर चाहिए। ऐसा कुछ आपको पासवर्ड का क्राइटेरिया रहेगा, तो भी हम कर सकते हैं। ओके, सो दैट आई विल लीव एज एन असाइनमेंट। ओके, आप खुद से करके दिखाओ मुझे, ये तो करो ही जो भी अभी मैंने बताया ये सब चीजें। ऑन टॉप ऑफ इट यू हैव टू add one more validation to the password box, that your password should have one alphabet, one number, one special character, and minimum length should be 6, maximum length should be 10. So that way it will generate a strong password। जो भी आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे डालोगे वही पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा, तभी जाके वो अलो करेगा। ठीक है, so that is your assignment. Let me stop the recording.